मैं हूँ दशानंद रावण। Please, can you tell your name? I'm Emma and I'm from New Zealand and I've come about 3 or 4 times and I love coming and I wasn't able to. दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2 से 3 साल बीतने के बाद कोरोना का समय जा चुका है, लेकिन फिर कोरोना एक्टिव हो चुका है। यहाँ घूमने वाले हर एक पर्यटकों को, हर एक स्थानीय नागरिकों को ध्यान रखना है कि वो मास्क जरूर लगाए। अभी हम पहुँच चुके हैं शिल्पकला। शिल्पकला एक ऐसा मेला है जहाँ पर देश की हर संस्कृति के, हर राज्य के लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम देखने को मिलते हैं। अभी हम चलते हैं शिल्पग्राम और इसकी पूरी कवरेज आपको दिखाते हैं। Please, can you tell your name? I'm Emma and I'm from New Zealand and I've come about 3 or 4 times and I love coming and I wasn't able to because of COVID, so I'm so pleased it's back and to see all the lovely things. You are happy to be here? Yeah, You like colors of Rajasthan? love the colours. शिवनारायण अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, हाड़ौती क्षेत्र से आए हैं। कला का नाम चक्री लोक नृत्य, गांव शंकर कॉलोनी, पोस्ट चांचोड़ा, तहसील छबड़ा गोगोर, जिला बारा, राजस्थान से आए हैं शिल्पग्राम दर्शन में। इस कार्यक्रम के लिए वेस्ट जोन कल्चर सेंटर, बागोर की हवेली, गणगुरु घाट, उदयपुर, शिल्पग्राम दिसंबर मेले के लिए आए हैं। 21 दिसंबर से 25 दिसंबर के लिए हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम मिला। इस कार्यक्रम के अवसर पर 2022 में मौका मिला हुआ है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। चक्कर नहीं आता इसको, ये क्या आदमी देख के बच जाता नहीं है, जो इसको चश्मा लगाना पड़ता है, इसको अच्छा दिखता है, चक्कर नहीं आता इसको। नाम श्यामलाल है, गंगापुर भिलवाड़ा से आए हुए हैं। ये गजक बना रहे हैं शिल्पग्राम मेले में। वो पीछे बेल चल रहा है, वो तैयार करके दे रहा है। इसमें तिल्ली है, गुड़ है, इसमें तिल्ली और गुड़, खोपरा, काजू, बादाम के साथ में। ठीक है। क्या रेट रखी आपने इसकी? रेट तो ठीक है, 300 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है। सर्दी के लिए अच्छा रहता है, सर्दी के लिए, शरीर के लिए फ़ायदा रहता है, खाना चाहिए। ये तिल कौन सी, काली तिल या वाइट तिल? नहीं, तिल तो वाइट ही रहती है, पर गुड़ देसी आता है ना। ये क्या आदमी देख के बच जाता नहीं है, जो इसको चश्मा लगाना पड़ता है, इसको अच्छा दिखता है, चक्कर नहीं आता इसको।
My name's Josh. Nice to meet you. Where are you from? Germany. How you feel here? Very good. I mean, weather is nice right now. In Germany, it's freezing cold, and here, this is perfect for us. So, like in terms of COVID, very safe. I mean, people are vaccinated. Actually, in Germany, we are used to wearing a lot of masks these days, but here it seems that it's safe. But it's interesting you make us wear the masks here, even in the outside, but still everything is safe, I would say. So we feel comfortable even with a lot of more people than in Germany. So, yeah. What do you think Silk Ground Fair? How you feel here? Oh, this is amazing. This is an amazing place in the sense that you have, I mean, if you come to India, the north, the west, the south, it's all different. But here you have everything in one place, right? So you don't need to travel the entire country to see all the different cultures, all the different arts. So I think this is what makes this place special. And it's interesting to see that a lot of Indians come here as tourists as well, so that you embrace your own culture. We really like that. You are coming in first time in India? It's my second time here. I was. Udaipur? Yeah, that's my first time here. Oh, that is first time. I was in the south, like in Bangalore and Chennai and Goa, Kerala, but in the north, here especially, it's the first time, and it's really nice. We've been to Mumbai; it's very crowded, and here, very chill. Right? So nice weather, This is nice the heaven people. of the earth, Udaipur. Yeah, it really is. It's like a paradise of the earth. It definitely feels like this. मैं हूँ दशानंद रावण मेरा आदि है अंत नहीं मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है धरती मेरे पैरों के नीचे आकाश मेरी मुट्ठी में मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान मैं हूँ दशानंद रावण आप सबसे कहने आया हूँ मास्क का वापर कीजिए सैनिटाइजर का वापर करिए सुरक्षित अंतर रखिए ये संदेश लेके शिल्पग्राम उत्सव में आए हैं मैं हूँ दशानंद रावण मैं राजेश चांद औंदकर महाराष्ट्र अमरावती जिला यहाँ से आया हूँ। हमें शिल्पग्राम उत्सव में बहुत सालों से बुला रहे हैं। हमें खुशी है कि हमें शिल्पग्राम उत्सव में हमारी कला करने का हमको मौका मिल रहा है। हम खुश नसीब है कि हमको शिल्पग्राम में हमारी कला जो बहुरूपी कला है जो लुप्त होने के मार्ग में है, तो आज ये शिल्पग्राम उत्सव की वजह से मेले में हम आते हैं, अपनी कला बताते हैं और एक कला में हमको बहुत खुशी मिलती है। लोगों का हम मनोरंजन करते हैं, लोग खुश होते हैं, यही हमारा एक उद्देश्य है। रावण का जो आपने पात्र किया है उसको कैसा मानते हैं आप? रावण का पात्र जो है वो रावण के पात्र से हम कोरोना की जो जनजागृति करते हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और आज ये लोगों के मन में जो कोरोना के विषय में जो भय है वो लोगों का दूर करने के लिए हम लोग कोरोना का जनजागृति करते हैं। और ज़रूरी है मास्क बांधना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल करना ज़रूरी है, छींकते और खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए और सुरक्षित अंतर रखना चाहिए। ये संदेश लेकर हम यहाँ आए हैं। मैं हूँ दशानंद रावण। खाना दो बार हो गया। भैया मुझे बचाओ, मैं वन में घूम रही थी तो राम लखन ने मेरा नाक काट के मेरा ये किया है करके मुझे बचाओ भैया, मुझे बचाओ, ऐसा करके हम लोगों को सहारना करते हैं। मैं सुभाष वैद्य अमरावती से यहाँ पर आया। मैं
रावण की बहन जो है होती है नहीं अपना वो पुतना बोलो या ये बोलो सुरपनका हाँ सुरपनका का जो पार्ट है आज जो लिया है मैंने तो अभी हमारे साहब जो बताया है अभी साहब जी ने हमारे बताए वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारे बड़े वो है और वही सब हमारे कर्ता करविता है इसलिए मैं थोड़ा बात करता हूँ। भैया मुझे बचाओ मैं वन में घूम रही थी तो राम लखन ने मेरा नाक काट के मेरा ये किया है करके मुझे बचाओ भैया मुझे बचाओ ऐसा करके हम लोगों को सहारना करते हैं बस। जैसे आपने रावण की बहन का रोल निभाया कपड़ों बन करके हाँ। आप कुछ और रोल भी निभा सकते थे आपने यही क्यों चुना? नहीं हर रोज का एक रोल करते हैं ना। अच्छा। हाँ अभी हम 5 दिन है तो 5 रोल निकाल सकते हैं। कल भीम का था उसके पहले दूसरा था ऐसे हर रोज एक रोल करते हैं। हाँ तो हर रोज लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा ना करके रोल बदला के हम लोगों का मनोरंजन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ब्रह्म का पुत्र हूँ नारद मेरा नाम यूँ इधर उधर की लगाना यही हमारा काम है। प्रभु का जो आशीर्वाद होता है वो सबको मिले यही मैं अपेक्षा करता हूँ। मेरा नाम रतन कुमार औंधकर है। हम अमरावती महाराष्ट्र से यहाँ पर पधारे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र को जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज हम नारद के रूप में लोगों के सामने मनोरंजन कर रहे हैं। लोगों ने हमें बहुत सराहा है आज, लेकिन बात ऐसी है कि हम ये ऐसे कब तक घूमते रहेंगे। सरकार अगर हमारे समाज को स्थायी रूप से कुछ हमें कुछ ये कर दिए सहयोग कर दिए तो आगे चल के हमारा समाज ऐसी उन्नति कर सकता है। ये हम घरों घर गांव ऐसी वेशभूषा लेके घूमते हैं तो कब तक घूमते रहेंगे। आज बच्चे हमारे साथ में रहते हैं, उनके पढ़ाई का बड़ा प्रॉब्लम है। हमने सुना है कि बहुरूपियों को राजस्थान सरकार ने आदिवासियों की सहूलत दी है, लेकिन हमारी सरकार महाराष्ट्र सरकार ने हमें इससे वंचित रखा है। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं शिल्पग्राम एक ऐसा शिल्प कला मेला होता है जहाँ पे देश भर की संस्कृति देखी जा सकती है। उदयपुर जो कि पूरा एक तरह से शहर हो चुका है, लेकिन शहर के अंदर भी गांव बसता है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये झोपड़ी का लुक दिया गया है। यहाँ पर एक स्टेज को पूरा झोपड़ी बनाए गए, ऊपर केलू रखे गए, नीचे लकड़ी बनाई गई है। और पूरा जो गांव का जो वातावरण होता है, गांव में जिस तरह से लोग रहते हैं, उनके जो मकान होते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे दर्शाया गया। आइए आप मैं कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा आगे। देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई, बिल्कुल जो गोबर होता है, गाय का गोबर होता है, घारा मिक्स करके उससे बनाई गई है ये। और उन पर एक कलाकारी भी की गई है जिसे आदिवासी आर्ट में मांडना कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे खिड़कियाँ भी बनाई गई है और खिड़कियों के अंदर से अगर कैमरे से झाँकेंगे तो अंदर का जो पूरा व्यू है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से उस ज़माने में मकान हुआ करते थे, झोपड़ियाँ हुआ करती थी और उनमें किस तरह से लोग रहा करते थे और कितना ठंडक देते थे और कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और किस तरह से ताले हुआ करते थे और किस तरह से जो गेट हुआ करते थे उस ज़माने में। और उनके जो इनको क्या बोलते हैं, कुंडा इस तरह से हुआ करता था। और ये देखिए छोटी सी रसोई का भी एक झरोखा बना रखा है। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चूल्हा दिखाई दे रहा है शायद। तो ये इस तरह से उस ज़माने में भारत के जो लोग हैं वो इस तरह से रहा करते थे इन झोपड़े में। आइए आपको पूरा दूर से दिखाएंगे इस पूरे दृश्य को, यहाँ से दिखाओ।
देखिए यहाँ पे खारे पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, इन पूरा इससे सारा मिक्स करके इसे यहाँ बनाया गया है और पूरा जो झोपड़ी का लुक दिया गया, पूरा गांव का लुक दिया गया है इस पूरे जगह को। तो दोस्तों शिल्पग्राम का जो उत्सव का जो आयोजन है वो यही समाप्त होता है और हम भी अब घर के लिए निकलेंगे। और आप हमारे जो चैनल है लेक सिटी उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक लेक सिटी न्यूज़ के मार्फत पहुंचती रहे।